अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, देहात में ख़ानदान में जब बैठे लोग बात कर रहे हों तो या तो बात जानवरों की हो रही होती है या फसलों की, और साथ ही साथ बच्चों के कामकाज और शादी का मौजू भी ज़ेर बहस ज़रूर होता है। आइए देखते हैं कि आज अब्दुल रहीम के घर में किस मौजू पर बात हो रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਵੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਛੱਡਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲੱਗਾ, ਤੇਰਾ ਭੋਲਾ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਆ? ਹਾਏ ਤੇਰਾ ਭੋਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਢੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੋ, ਲਾਡ ਚੁੱਕਦੇ ਸੋ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਭੋਲਾ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹੀ ਲੜਾਈ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਲੜਾਈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਮੈਂ। ਬਾਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਚੁੱਕਦੇ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆਣਾ? ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜੂਸ ਦਾ ਡੱਬਾ ਏ? ਖੈਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫੇਰ? ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਡੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਭੋਲਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਭੋਲਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਬੇਟਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਡਿਆ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਲਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਰਹਿ ਲਾਂਗਾ। ਹਾਏ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ? ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਸੁਕਾ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਏ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਲਪਣ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਡਏ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ। ਕੰਮ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਕਸ ਲਾ ਲਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਹੁਣਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਬੋਲਿਆ ਸਰਕਸ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀਆ ਅੱਛਾ ਹੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੀਜੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧੜ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਸਿਰ ਮੱਛੀ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਇਆ ਸਰਕਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਣਗੇ ਨਾ ਅਗਲੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਡੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਇਆ ਇਸ ਘਰ 'ਚੋਂ, ਮੈਂ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਸੇ ਖਸਮ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਤੋੜ ਛੱਡੇ। ਯਾਰੀ ਸੱਲਾ ਕਿਉਂ ਮਨੂਸ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੀ ਤੇ ਕਰਨ ਡੇ ਆ। ਇਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵੋ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਐਡਾ ਕਾਮਾਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜੁਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। पर ये भी तो सोचिया करो, घर च जेडे दाने होंदे ने वो भी इहदी वजह तो ही होंदे ने। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जब पूछा जाए कि लड़का क्या करता है और जवाब में कह दिया जाए कि खेती बाड़ी, तो उसको तो कोई काम ही नहीं समझा जाता। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि उसमें तनख्वाह नहीं मिलती, तो लिहाजा उसको कोई काम ही नहीं समझता। वो गल ही सारी ये वे जी, वरना रब जानदा जी अब भोले वर्गा मुंडा ते चिराग लैके भी लभण ते इन्हां नूं नहीं लभना। ताया हुण भी मैनूं ये चिराग लैके लभदे ने। अम्मा दिन चढ़े लालटन फड़ के तो मैनूं लभण दी हुंदी मंजियां ते, भोला किते सुता ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾਂ? ਬਣਾ ਲਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ। अम्मा मेरे लिए भी बना ली चाह। ਹਾਏ ਲੈ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲ ਭਰ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈਏ। तो भाई पी गया सारी, मैं तो एक रस खाता ते बस सारी पी गया चाह। ਜੀ ਭਾਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਕਿਹੜਾ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਣਾਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹ। ਇਹ ਅੱਬਾ ਅੰਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੋਣ ਡਈ। ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਸਹੀ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵਹੁਟੀ ਲੈਣ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੱਬ ਚੜ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਘਰ, ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਡੋਈ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਤੇ, ਵੇਖ ਲੈ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਦਫਾਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਈਆ ਘਰ ਦੇ ਚ ਲੜਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜ ਕੇ ਪੇਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਏ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਗਿਆ? ਓਏ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਇਧਰ ਪੇਕੇ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਇਆ ਟੋਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣ ਗਈ ਏ ਤਾਈ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ 7 ਮਾਮੇ ਨੇ ਟੋਨੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮੇ ਵਾਲ ਰਵੇ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 7 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਾਮੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਇਆ ਜੀ 7 ਮਾਮਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਉਹ 7 ਨੇ, ਉਹ ਲੜਨ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਐ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਛੇਤੀ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭਾ ਭੇਜੇ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਬੱਸ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੂੰ। ਟੋਣੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾ ਜਰਮਨੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ? ਯਾਨੀ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਨਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ। ओहो, यही तो हमारा अलमिया है। हर साल लाखों पाकिस्तानी बाहर जाते हैं। इस साल भी इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक तकरीबन 7.5 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क चले गए। लोगों को ये लगता है कि वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर शायद पैसे दरख्तों पर लटक रहे होते हैं और सब अच्छे की वहाँ पर रिपोर्ट होती है, जबकि इससे कहानी मुख्तलिफ है। बोले तुम यहाँ पर अच्छा भला अपना काम करते हो, अपना ज़मींदारा करते हो, अपनी ज़मीनों पर खुद फसल काश्त करते हो, किसी पर तुम्हारा इन्हिसार नहीं, तुम क्यों बाहर जाना चाहते हो? ਰੱਜ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ਬਾਊ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆ। ਦੁੱਧ, ਮੱਖਣ, ਅਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਚਣ ਡਈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਨਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਫੋਟੋ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਹਿਰ ਚ ਰੁੜਦੀ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਫੋਟੋ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋੜੀ ਸਾਰੀ ਫੋਟੋ। ਤੇ ਫੋਟੋ ਪੁੱਠੀ ਜੋੜ ਬੈਠਾ, ਸੱਜੀ ਆ ਕੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲਾਤੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਤੀ। ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਭੋਲਾ ਪੈਂਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੋਲੇ ਆਇਆ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੋਟੇ ਘਰ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਾਲ 2 ਆਂਡੇ ਵੀ ਰੱਖ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਂਡੇ ਬੜੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਸੁੱਟ ਗਏ ਸਨ। कहती रही हूँ मैं आप सबको कि भोले भाई का रिश्ता शहर में करवा दें। हूर जैसी खूबसूरत थी मेरी कजन। हैं ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। बताया तो था तुम्हें। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। वो कहते थे ना कि जिम्मेदार से शादी नहीं करनी, कोई और कारोबार करे। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। यार एक मिनट, मेरी बात सुनो। तुम अच्छे खासे जमींदार आदमी हो, तुम्हारे आबाउजदाद से यही जमींदारी चलती चली आ रही है। जिस घर में जो तुम्हारी जिम्मेदारी को पसंद नहीं करते हैं वहां पर तुम शादी क्यों करना चाहते हो? ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਗਰਮੀਆਂ ਲੰਘ ਲੈਂਦੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਲੰਘ ਲੈਂਦੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਮਰਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਮਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ ਬਾਊ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਰਾਂਡੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਦੀ ਗਲੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਦੀ ਕੋਠੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਛਰ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਅਰੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਹ ਇਹਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਦਾਈ ਆ, ਦੰਦਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ,
मेरे बच्चे का ब्याह ना कराना। अस्सलाम वालेकुम मां। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। ਓਏ ਆਪਾਂ ਨਾ ਐਡਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਵਿਆਹ ਬੜੇ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਰਲਸ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰੇ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ। ਐਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ। ਆ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰੇ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ। ਤਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ? ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਰੱਟਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਕੱਲੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਅੰਮਾ ਜੀ, 5 ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੰਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਐਸਪੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਖਾ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਪਕਾ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਗਿਆ। वैसे ये जो आइडियलिज्म है ना, इसी की वजह से हमारे यहाँ रिश्ते पहले लेट होते हैं और फिर बाद में ख़राब भी हो जाते हैं। और मुतालबात हैं कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। बिल्कुल अली साहब, मैं हुण किसी कुड़ी नूं डायरेक्ट ही कह देना आई लव यू, या फिर लव मैरिज होएगी या फिर मैनूं 10 साल कैद होएगी। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने भी इनको 2-3 रिश्ते दिखाए हैं, लेकिन इनकी डिमांड्स ही नहीं खत्म होती। अम्मा 2 चावल तो मेरे कमरे 'ਚ भिजवा दियो। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਭਾਪੇਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਬਣਾਨੇ ਆ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਮਰਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਚੱਲ ਉੱਠ ਜਾ, ਪੈਲੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਓ। ਮੈਂ ਸਾੜੀ ਅੱਬਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਸੇਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਉਤੋਂ ਸੂਰਜ ਸਵਾ ਨੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਏ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਰੂੰ, ਪੱਖਾ ਲੈ ਜਾ, ਝੱਲ ਮਾਰਾਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਫਸਲ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੱਡੂ ਪੀਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਫੂਕਾ ਮਾਰਾਂ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਆਵਾਂ ਛਡਾਲੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਜ਼ਰਾਇਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ किस तरह बचाइए। रहीम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे भोला। आपको मालूम भी है कि दर्जा हरारत कहां पर पहुंचा हुआ है? 47-48 डिग्री पर पहुंचा हुआ है और नीचे आने का नाम भी नहीं ले रहा है। यही वजह है कि पूरे मुल्क के किसान परेशान हैं। एक तरफ गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ मौसमियाती तब्दीलियां। मैं कहना जी सारी जिंदगी सुनते ही रहे हैं सूरज सवा नेज़े ते आ गया है, पर आया वेखिया ऐदगी जे। जी हाँ, और यही वजह है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि सूबा सिंध में इस साल अब तक 50% आम की फसल में कमी रिकॉर्ड की गई है। तो जहां पर दरख्त ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वहां पर चारे की फसल इस तपिश को कैसे बर्दाश्त करेगी? नास बज गया जी, मैनू चंगी तरह याद है। आ हर गर्मियां च 4-4 5-5 पेटियां ते इकल्ला ही अंब चूम जांदा है। ऐतकी मैं पूछिया, मैं कोई अंब शंब को नवे कीते नहीं, आंदे खटे आउंदे ने ते खावांगी। ਬਾਊ ਜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਆਪੇ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਆ ਪੈਲੀ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਸਨ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਵਢਾ ਛੜਿਆ। ਇਹ 10 ਦਰਖਤ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਸਨ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸਨ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਵਢਾਤੇ ਨੇ? ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚੇਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਸੀ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਵੇਚ ਛੱਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। बस यही जुल्म कर रहे हैं हम, हमें जरा एहसास नहीं। पूरे मुल्क में यही तो हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हम एहसास नहीं करते, हम सोचते नहीं हैं। एक दरख्त तैयार होने में कई साल लग जाते हैं, पहले पौधा, फिर उसके बाद मेहनत करते करते वो तनावर दरख्त बनता है, और हम 5 मिनट लगाते हैं और दरख्त को काट देते हैं। बिल्कुल। एक सर्वे के मुताबिक ये बताया गया है कि यही गुज़श्ता 10 सालों में जो हमारे मुल्क में दरख्त काटे गए हैं, इसी की वजह से दर्जा हरारत में 4 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हुआ है। और यार मैं कोई शौकिया नहीं कटवाए, शतूत ते बेरियां दे दरख्त सन, बाल आके ढेमा मारदे सी, रोड़े मारदे सी, पैलियां खराब कर दिंदे सी, जगह घेरी सी, मैं इसलिए कटवाते ने। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਰੋਡ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਰਖਤ ਵਢਾ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਸੜਨ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ? ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? क्या? ਆ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ। ਆ ਟਰੰਪ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ?
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ? ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤਾਇਆ ਤੂੰ ਹੀ ਹੁज्जत ਹੀ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਰ? ओ नहीं पुत्र, मैं ये कहना चाहना कि मेरे ज़हन च एक रिश्ता है। ओ बाप बोले उठ यार उठ, मेरे नाल खुद ही चल। क्या है? ओ ट्यूबवेल दा पटा टूट गया यार। हाँ और तू क्यों ना आ गया पटे दे विच? ओए पटा नहीं टुटा, मेरा रिश्ता टुट गया है। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨਹੂਸ ਖਬਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭੋਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲੀਆਂ ਚੋਂ ਤੂੰ ਦਰਖਤ ਵੱਢੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿੰਨ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੰਨ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। यार क्यों फजूल बात कर रहे हो? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਦਾ ਪੜਾ ਟੁੱਟਾ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਟੂਲ ਦਾ ਸੁੱਚ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਟੂਲ ਦਾ ਬੋਰ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਟੂਲ ਦਾ ਪਟਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। मेरा ब्याह ही मनहूस है। यार ऐसी बात नहीं करो, ये इत्तेफाक तो हो सकता है पर इसमें नहूसत कहां से आ गई? और तानू नहीं यकीन ते हुणे आजमा के वेख लो, करो मेरे ब्याह दी गल शुरू। आ देखो की बनदा। हौसला कर पा, हौसला कर। ओए हौसला की करना, करो जी मेरे ब्याह दी गल करो। और नहीं पुत्र एवें ना दिल छोटा करे, अगर की करना तू। मैं कहन दिया सा कि एक रिश्ता मेरे ज़हन च है। बोले 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 तेरे भरा परवेज ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈ ਗਿਆ ਈ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਪੇਜੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਾਲਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਤਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। और रहीम जी अपने घर दे बाहर लहवा दे, यहाँ शादी की गुफ्तगू करना मना है। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये कोई वही शख्स कर सकता है जो सेहत के एतबार से और ज़हनी एतबार से फिट हो, वरना आप देखे यार बर्फ तो थोड़ी देर हाथ में पकड़े तो ऐसे ऐसे करना शुरू कर दे। नाज़रीन पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन, लाहौर का टेम्परेचर 46 से 49 तक अपड़ा हुआ है, इसलिए न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आपके लिए ऐसी खबर लेके आया है जिससे आपको हल्का सा अच्छा फील होगा। अच्छा सर, वाह वाह वाह, शुक्र है। फिर जल्दी खबर सुनाओ ताकि कुछ तो गर्मी कम हो। खबर कुछ यूं है कि स्विट्जरलैंड के एक शख्स का शॉर्ट्स पहनकर बर्फ में दबे रहने का अनोखा रिकॉर्ड। एलिस मीर नामी शहरी जो पेशे के एतबार से पावर लिफ्टर है, उसने 2 घंटे और 7 सेकंड बर्फ के नीचे गुजार कर रिकॉर्ड कायम किया। क्या बात है। 2 घंटे 7 मिनट अजीजी। यस, ये कोई छोटा रिकॉर्ड नहीं है और ये कोई वही शख्स कर सकता है जो सेहत के एतबार से और ज़हनी एतबार से फिट हो, वरना आप देखे यार बर्फ तो थोड़ी देर हाथ में पकड़े तो ऐसे ऐसे करना शुरू कर दे। मुझे खबर पढ़ के याद आ रहा था जब छोटे होते अम्मी भेजती थी ना बर्फ लेने के लिए बाजार से, तो किसी वक्त रुमाल लेके जाना भूल जाते थे, तो उस वक्त शापर होते नहीं थे, तो बर्फ पकड़ के जो घर आते थे कभी इधर से इधर, कभी इधर से इधर, कभी इधर से इधर, कभी कमीज में डाल लेते थे और कई दफा तो बर्फ नीचे गिर जाती थी और गिर के 2 टोटे हो जाती थी, फिर उसे उठा के घर ले जाके धो के डालते थे पानी में। यार अगर आप बर्फ के फटे वाले से कहते इसे सेबे में बांध दो, वो बांध देता। अब मैंने तुम्हारी तरह फटे पर बर्फ नहीं ना लगाई कभी। मुझे क्या पता है कि ये टेक्निक का इस्तेमाल हो सकती है। अजीजी, यानी कि ये पावर लिफ्टर एलिस मीर तुम्हारी तरह नहीं था, फिट था। सर जी ये बड़ी बात है, 2 घंटे 7 सेकंड निक्कर पा के बर्फ में दबे रहना। गोगा तो बड़ा नाजुक आदमी है। वो भाभी ने फ्रिज में रखा गोश्त, तो गोगे को बोला भाभी ने कि जाओ गोश्त निकाल के लाओ फ्रीजर से। अच्छा, गोगा फ्रीजर से गोश्त निकालने गया है, तो इसको एकदम सुइयां चुभी हैं। तो गोगे ने कहा भाभी को कि गोश्त तो बिल्कुल ही बर्फ हो गया है, तो फ्रिज उठा के ही हांडी में डाल लो। यार क्या बेवकूफों वाली बात करते हो, फ्रिज हांडी में जा सकती है? जेम्स बॉन्ड, तुम्हें गोगे की हांडी के साइज का नहीं पता। यार आप ये देखो कि कैसे कैसे हौसले वाले और बाहिम्मत लोग मौजूद हैं। गोगे जैसे?
अरे नहीं, मैं एलिस मीर की बात कर रहा हूँ यार। हाँ भाई, ऐसे ऐसे बाहिम्मत लोग मौजूद हैं। इसने तो चलो नेचुरल बर्फ में दबकर रिकॉर्ड बनाया ना, वरना ऑस्ट्रेलिया के एक शहरी का बर्फ से भरे बॉक्स में 2 घंटे 30 मिनट 57 सेकंड तक मौजूद रहने का आलमी रिकॉर्ड है। यार ये देखो कि गोरे आलमी रिकॉर्ड बनाने के लिए कैसे कैसे पागलपन का मुजाहरा करते हैं। और सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए ही नहीं, आप देखें कि ये जो हॉलीवुड की फिल्में हैं, जी जी, वहां पे एक्टर ऐसा ऐसा काम करते हैं कि बंदा सोच ही नहीं सकता। जैकी चैन का तो आप सब जानते हैं कि वो अपनी फिल्मों में सारे स्टंट खुद करता है। बल्कि एक इंटरव्यू में उसने कहा था, मेरे जिस्म की सारी हड्डियां एक एक दफा टूटी हुई हैं, सिर्फ एक नहीं टूटी, वो सिर्फ गर्दन की हड्डी है। जो इंटरव्यू ले रहा था उसने कहा, भाई जी अगर गर्दन भी टूटी होती थी आज मैं इंटरव्यू किथों लेना। अच्छा, जैकी चैन के अलावा टॉम क्रूज भी पागल एक्टर है। आप हैरान होंगे सुन के कि 62 साल की उम्र में फिल्म जो थी ना मिशन इम्पॉसिबल, उसमें उसने एक स्टंट किया था, 16 बार खुद को मौत के मुंह में धकेला था। ये स्टंट ये था कि पैराशूट को आग लगी हुई है और उसने जंप करना है। और अगर पैराशूट 10 सेकंड के अंदर अंदर ना रोका जाता तो उसमें टॉम क्रूज भी पहुंच जाता। मेरा ख्याल है उस दिन टॉम क्रूज अपनी बीवी से लड़के गया था शूटिंग पे। और यार वो इतना ही दिलेर बंदा है, इससे पहले वो अपनी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 में मोटरसाइकिल पे एक पहाड़ी से छलांग लगा चुका है। तो तुम्हारा क्या मतलब कि बंदा बीवी से एक दफा लड़ता है? यानी जदों उन्हें स्टंट करना हो पहले बीवी ना करो लड़े, जिदन बीवी अगो नहीं लड़ रही तो फोन कर दे, भाई जी आज शूटिंग कैंसिल कर दियो। या फोन करके दसे, भाई जी सारे हफ्ते की शूटिंग आज ही कर लो, लड़ाई वध गई जे। हद हो गई है वैसे गौरी यार, तुम बात को समझ नहीं रहे। तुम तो खुद एक एक्टर हो, तुमने तो खुद एक फिल्म में 15-20 विलनों से फैंटी खाई हुई है। और यार फिर हीरो को फिल्मों में फैंटी तो पड़ती है। ओ भाई, वो हीरो की वजह से फैंटी नहीं पड़ी थी, तुमने हीरोइन का हार चोरी कर लिया था। यार एक तो ये मीडिया कोई बात छुपी नहीं रहने देता। यार अली मुमताज साहब वेरी नॉन सीरियस लोग हैं। बिल्कुल। मैं आपको ही सुनाता हूं, ये जो मैं बता रहा हूं ना, टॉम क्रूज ने मोटरसाइकिल के ऊपर पहाड़ी से जंप लगाया था। इस खतरनाक तरीन स्टंट के लिए टॉम क्रूज ने 50 स्काई डाइविंग सेशन में शिरकत की। अच्छा। और हजारों बार मोटरसाइकिल से जंप लगाई। परफेक्शन ऐसी नहीं आ जाती, उसके लिए बड़ी जान मारनी पड़ती है। लोगों को लगता है कि बस आए और कर लिया, इसके पीछे भाई जी कई महीनों की मेहनतें होती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे तुम जेम्स बॉन्ड। ये गोगे ने एक फिल्म में खाने का स्टंट किया था, 20 दफा रिटेक हुई, उसमें इसने 238 नान खाए थे। वो तो ये खुद रिटेकिंग करा रहा था, वो कह रहा था जिन्नी देर रजांगा नहीं मैं तो सीन नहीं ओके हो गया। नहीं यार, वो तो डायरेक्टर ने जल्दी सीन ओके कर दिया था, फिर मुझे घर जाके भी रोटी खानी पड़ी। अमान से मुझे कभी कभी ये जिन भी लगता है। अच्छा, ये तो फिल्मों वाले करते रहे हैं ना स्टंट। एक और सुने ये रहा। अच्छा। 2016 में एक अमेरिकी बंदा था लेविक एकन्स, उसने 25,000 फुट की बुलंदी से बगैर पैराशूट के छलांग लगाई थी। यस, और बाहफाजत जाल में आके गिरा था। वाह। ये जो लेविक एकन्स था ना जी, इसने मुख्तलिफ बुलंदियों से तकरीबन 18,000 बार छलांग लगाई हुई। ये जो छलांग 25,000 फुट की बुलंदी से लगाई गई थी, इसमें गिरने के दौरान उनकी रफ्तार 120 मील यानी तकरीबन 193 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच गई थी। बंदा जब ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ जाती है। आपने देखा नहीं, ये जो अकाब होता है वो ऊपर से ऐसे आहिस्ता आता है, फिर एकदम तेज होता है और आके तो अपना शिकार उठा कर निकल जाता है। माशाल्लाह अजीजी, तुम्हारी इतनी नॉलेज है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा होता है तुम्हें मालूम है। ये बताओ कि हमारी फिल्मों के जो आर्टिस्ट हैं वो भी ऐसे स्टंट करते हैं? गुड क्वेश्चन।
ये जो तुमने कहा कि तुम्हारा इतना नॉलेज है, अब तो बताना पड़ेगा। हमारी फिल्मों के लोग जो हैं वो मैं समझता हूँ गोरियों से ज्यादा दलेर हैं। क्योंकि वो अगर छोटा मोटा भी खतरनाक स्टंट करते हैं तो उन्हें बेचारे इंश्योरेंस ही नहीं होती। गोरे जो है ना जी वो तो इंश्योर्ड होते हैं, उन लोगों ने तो इंश्योरेंस कराई होती है। यहाँ पे भी जितने भी स्टंट करने वाले आर्टिस्ट हुए हैं वो बेचारे बड़ी बड़ी दलेरी से काम करते रहे हैं, मगर बगैर इंश्योरेंस के। बल्कि सुल्तान राही मरहूम मुझे उन्होंने खुद बताया, चूंकि एक जगह मैं भी एक शूटिंग के दौरान ना जी एवं को डाइयां लगा रहा था। उस वक्त ज्यादा यंग था, अब भी यंग हूँ। तो मुझे राय साहब ने बताया, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, बड़े प्यारे आदमी थे। उन्होंने कहा बात सुनो इधर आओ काका, इतना ज्यादा शोखा होने की जरूरत नहीं है। इस तरह का अगर कोई शॉट हो तो वो उसके लिए डुप्लीकेट इस्तेमाल करने दो इन लोगों को। बहुत अच्छे। मुझे भी इसी तरह बड़ा जुनून होता था, बड़ा जज्बा होता था। मैं भी अपनी सारियां हड्डियां तड़ाइयां हुई हैं, इसलिए जरा एहतियात से काम करो। राय साहब ने बड़ा बड़ा खतरनाक शॉट दिया हुआ है। हाँ जी, घुड़सवारी करते हुए उन्होंने ऐसा ऐसा शॉट दिया हुआ है, बंदा हैरान हो जाता है। बल्कि इस काम में तो सर उनकी उंगली भी टूटी थी, हर फिल्म में वो इसी तरह ही बात करते थे। हाँ, और फिर जो हमारे स्टंटमैन हैं स्टूडियो के जो होते थे, अब तो बिल्कुल ही बेचारे नहीं रहे, इधर उधर ही हो गए हैं। जितने भी ये फाइटर होते थे ना जी, इन्होंने ऐसा ऐसा खतरनाक शॉट दिया हुआ है। मुझे याद है शोगरा की तरफ एक कोई शूटिंग हुई थी, वहां पे कोई शॉट बना लिया फाइट इंस्ट्रक्टर ने, किसी दरिया के ऊपर से ना जी पुल से छलांग लगानी थी उसमें। पहले अपना एक बंदे ने लगानी थी, उसके पीछे दूसरे ने। वो उसने एक नहीं डाई लगाई है तो दूसरा रुक गया है, चूंकि उसने कहा आया नहीं होते किधर गया है। बंदा डूब के नीचे फिर ऊपर आता है एक दफा, वो नहीं आया, वो उसने नहीं लगाई, वो बच गया, और वो नहीं आया। उस बेचारे की डेड बॉडी भी नहीं थी मिली उस फाइटर की। वो उधर ही दरिया में कहीं डूब गया, नीचे कहीं फंस गया। फिर मुझे याद है कि ये जो शीशा तोड़ते थे, शीशा तोड़ने वाले हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त थे सहर अब्बास साहब, वो भी ये स्टंट करते थे कि किसी शीशे का दरवाजा है या कोई ऐसी रुकावट है शीशे की, तो उसमें से डाई मार के शीशा तोड़ के परले पासे जाना। वो बेचारे जख्मी हो जाते थे, कई दफा जख्मी हो जाते थे, कोई इंश्योरेंस नहीं। ज्यादा तो ज्यादा जड़ा अपना फिल्म साज या डायरेक्टर है उसने ताड़ियां तूड़ियां मरवा के तो 500 रुपया बहुता देता है, रख 500 शहजादे जाके पट्टी पुट्टी करा ले। वहां गोरों के पास तो हिफाजती इंतजाम बड़े कमाल होते हैं। आर्टिस्ट को नजर आ रहा होता है, वो दलेरी से काम करता है, उसे पता होता है कि मैं इंशाल्लाह संभाला जाऊंगा, कोई ऐसा मसला नहीं। यहाँ तो अन्य काम करते रहे। ये हमारे जो शफकत चीमा साहब हैं विलन, बहुत बड़ा नाम हुआ है शफकत चीमा, उन्होंने बड़ा बड़ा खतरनाक शॉट दिया हुआ है। वो तो ऐसा पागल एक्टर हुआ है कि उसने एक दफा सांप ही खा लिया। इस शूटिंग के बाद वो फिर अस्पताल दाखिल हो गए थे। हाँ जी, जितने वो जज्बाती एक्टर हैं उन्होंने सारा सांप खा जाना, तो सांप कौड़ा था। फिर एक दफा शेर से लड़ पड़े। हाँ, शेर के साथ लड़ाई थी, कहते हैं मैं करूंगा खुद। उसमें भी जख्मी हुए। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है एक फिल्म थी तेजाब, उसमें मैं भी था और शफकत चीमा साहब भी थे। तो उन्होंने वाइंड अप बनाया हुआ था डायरेक्टर ने कि ये वाइंड अप पे ना जी आपको हीरो आग लगा देता है विलनों को। मैं भी विलन था, वो भी विलन थे। तो मैं डर गया, मैंने कहा जी मेरा तो हो रहा है थिएटर का टाइम। ये आपने जो सीन बना लिया ये है जरा ज्यादा लंबा, तो इसलिए मुझे तो ना जी को फैरफूर ही मरवा के तो भेज दे। 2-3 दफा डायरेक्टर इस बात पे हंसे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो जी इन्हें फिर मरवाओ गोली ते जावे। वो टिशू खाली होना होता है, टिशू में भी करके फटाफट डिग के उठ के फटाफट मैं अपनी मोटरसाइकिल फड़ी और दौड़ गया। और बाद में उन्होंने आग लगाने वाला सीन शफकत चीमा साहब से करवाया। अगले दिन सुबह सुबह शूटिंग थी, मैं वहां गया, मैंने कहा यार बंदा कोई नहीं नजर आ रहा। शूटिंग सी 9 बजे, किधर गए ने सारे। वो एक कबूतर बेचारा पियन था, उसने बताया भाई जी शूटिंग कैंसिल हो गई है। मैंने कहा क्यों? कहते नहीं शफकत चीमा साहब ने आग लाती ही अस्पताल दाखिल।
नाज़रीन, इसके साथ भी लेते हैं एक और ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲगिरह मुबारक होए, 800 ਦਾ केक मंगा लो। आप सालगिरह वाले दिन आते तो मैं आपको केक भी खिलाता और सर पे पहनने के लिए वो लंबी टोपी भी देता। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब। बहुत शुक्रिया अली मुमताज साहब। मैं रास्ते में आते हुए सोच रहा था कि जाते ही सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को ये ज़रूर मशवरा दूंगा कि आप लोग आजकल जितनी गर्मी पड़ रही है सरदाई और सत्तू का इस्तेमाल ज़रूर करते रहे। लिखो शाह साहब ने टोट के सदके बन्या। ये सरदाई और सत्तू से अंदर की गर्मी काफी कम हो जाती है। सर, आपकी तनख्वाह में 500% इजाफा हो गया है। तो आप फिर सरदाई में तुख्म लगे और गोद कतीरा भी डाल दिया क्योंकि आपके अंदर मुझे गर्मी ज्यादा लग रही। बल्कि मैं उन सब दोस्तों को मशवरा दूंगा जिनके अंदर मौसमी गर्मी के साथ साथ हमारी तनख्वाहों के बढ़ने की गर्मी भी है कि वो लोग सरदाई और सत्तू के साथ तुख्म लगे और गोद कतीरे का इस्तेमाल जरूर करें। तो इससे क्या आपकी तनख्वाह कम हो जाएगी? ना तनख्वाह ना घट सन, इंदे नाल तुहाडा सीना ठंडा ठार थी वैसी। आज तो लगता किसी शरबत वाली रेड़ी तो ही आंख लोते हैं। गिलानी साहब, हम आपकी तनख्वाहों में 500% इजाफे की बात कर रहे हैं हुजूर। तो इसीलिए तो बता रहा हूं कि 500 रुपए में ये चारों चीजें आ जाएंगी। सत्तू भी आ जाएंगे, सरदाई के लिए बादाम भी आ जाएंगे, गोद कतीरा भी आ जाएगा और तुख्म लगे भी आ जाएगा। लो जी, मैंने लगता है आज गिलानी साहब ने अपनी तनख्वाह वाल नहीं आने देना। देखे गौरी साहब, तनख्वाह तो बहुत जरूरी होती है जी। तनख्वाह ना मिले तो सारे मामला ठप हो जाते हैं, बल्कि शड़प हो जाते हैं। लो, शड़प कैसे हो जाते हैं जी? और जी शाह जी दे आखर का मकसद ये है कि शड़प हो जाते हैं यानी डूब जाते हैं। कितने अफसोस की बात है कि आपके पास इख्तियार था और आपने खुद ही अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया। अली मुमताज साहब, फी ज़माना कोई किसी का सज्जन नहीं है। इस दौर में तो इंसान ने जो भी करना है अपने लिए खुद ही करना है, और फिर मैंने अकेले ने नहीं किया, अय्याज सादक ने भी अपनी तनख्वाह में इजाफा किया है। और मैं समझता हूँ कि 500% इजाफा इस महंगाई के दौर में कोई इतना बड़ा इजाफा नहीं। और वैसे भी आप देखें, सिर्फ 4 लोगों की तनख्वाह बढ़ी है, 5 की बड़ी होती तो फिर मैं समझता हूँ ज्यादती थी। उस सरकार 2 लाख तनख्वाह से सीधा 13 लाख पे पहुंच गए हैं। भाई आप ये भी तो देखें कि टमाटर 5 रुपए से 50 रुपए पे पहुंच गया है। और अगर टमाटर की कीमत 1000% बढ़ सकती है तो चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 500% क्यों नहीं बढ़ सकती? कितु घिनाने वे लफ्ज, कितु घिनाने वे। गिलानी साहब, टमाटर किसी कुर्सी पे नहीं बैठा हुआ, आपकी कुर्सी है और आपकी कुर्सी की जिम्मेदारियां हैं। आपने गरीब आदमी का एहसास करना है। हाँ जी। हा मुर्शिद, अगर तुहाडी इजाजत होवे ते उन्हां दे हाथ चूमावां। गेट को साइयां किथा तो बधाइयां किथा। अली मुमताज साहब, आप टमाटर को एक साइड पे कर दें। ठीक है। टमाटर के बगैर भी हड्डियां पक सकती है। आप टमाटर की जगह दही भी डाल सकते हैं, मगर चेयरमैन सेनेट की जगह आप किसी और को नहीं बिठा सकते। वाह। इसलिए मैं समझता हूँ कि चेयरमैन सेनेट टमाटर से ज्यादा अहम है। वाह। और शाह जी, ये आज आप क्या कर रहे हैं? लगता है आपके पास इस इशू पर कोई मुनासिब जवाब नहीं है। हाँ जी। देखे, जवाब तो सीधा सीधा है। तकरीबन 10 साल बाद हमारी तनख्वाह में इजाफा हुआ है, और ये जो महंगाई है उसमें तो रोजाना इजाफा होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पे बहस करना बिल्कुल फजूल है। वाह। मगर मैं समझता हूँ कि आप लोगों को महंगाई का क्या एहसास होगा। आप लोग तो एयर कंडीशन हॉल में बैठ के तो अपना प्रोग्राम कर रहे थे। जाए बाहर निकल के देखे, अली मुमताज साहब, करारा पापड़ 80 रुपए का हो गया।
गोलगप्पों की प्लेट 200 की हो गई। बर्फ वाला गोला छोटा 30 का और बड़ा 50 का हो गया। मुर्शद जो उत्ते रबड़ी पवाओ ते वाल गोला 200 रुपए दा थी। वाह वाह वाह। यार आज तो लगता है गिलानी साहब नूं नहीं सी अपने छोटे भतीजे नूं बुला लिया। गिलानी साहब, हम लाखों की बात कर रहे हैं और आप 50-50, 60-60 रुपए का हिसाब दे रहे हैं। अली साहब, आपका ध्यान सिर्फ लाखों पे है जी, इस बात पे नहीं है कि 2016 के बाद तनख्वाह बढ़ी। अब देखे तो सही, दुनिया बदल गई है इतने अरसे में। कोरोना आके चला गया है, रूस यूक्रेन लड़ पड़े हैं, पाक भारत जंग छिड़ के खत्म हो गई है, लेकिन हमारी तनख्वाह वही की वही खड़ी रही। अब अगर पहली दफा हमने इतने सालों के बाद इजाफा किया है तो खुदा के लिए इसको मीडिया पे इशू ना बनाए। आपको क्या मालूम कि इतना अरसा तनख्वाह ना बढ़ने से हम पे कितना कर्जा चढ़ गया है। 150 रुपया तो मैंने गिटकू का देना है। ना मुर्शद 200 रुपया। ठीक है, अगर तुम वो शरबत के गिलास वाले 50 भी डालना चाहते हो तो डाल दो। अली मुमताज साहब, ये तो मैंने सिर्फ आपको अपना बताया है। अय्याज सादक तो 500 रुपए के मकरूस हो चुके हैं। वही से तो हमें आइडिया आया कि तनख्वाह में 500% इजाफा होना है। अस्तगफिरुल्लाह। शाहजी, आप माशाल्लाह दोनों साहिब हैसियत शख्सियात हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि माशाल्लाह करोड़पति हैं तो गलत ना होगा। एक ऐसा वक्त कि जब मुल्क मुआशी एतबार से नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और गरीब जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है, वहां पर आपके तनख्वाहों का बढ़ाना समझें कि गरीब के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। यहाँ मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये तनख्वाह गरीब ने नहीं देनी, हुकूमत ने देनी है। और वैसे भी अल्लाह के फजल से हमसे ज्यादा आपको गरीब का एहसास नहीं। इसीलिए वजीर आजम साहब ने इस खामोशी के साथ बढ़ाई गई तनख्वाह के बारे में नोटिस ले लिया। देखे, वजीर आजम साहब तो वजीर आजम आदमी है। क्या मतलब? वो अगर हमारी पार्टी के होते तो मैं कहता कि वजीर आजम तो बादशाह आदमी है। जी भुट्टो। सदके सदके। मगर चूंकि वो दूसरी पार्टी के हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि वजीर आजम तो वजीर आजम आदमी है। देखे, ये मामला उनके दायरा इख्तियार में ही नहीं है। ना वो हमें तनख्वाह बढ़ाने से रोक सकते हैं और ना ही कोई टोक सकते। लेकिन कम से कम इखलाकी सतह पे तो मना कर सकते हैं ना। इखलाकी सतह पर क्या मतलब? वो वजीर आजम है या मेरे चाचू लगते हैं? देखे, हुकूमत का कौमी असम्बली व सेनेट के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं होता। हुकूमत पार्लियामेंट के दोनों ईवानों को बजट फराहम करती है। इस बजट के इस्तेमाल में कौमी असम्बली और सेनेट खुद मुख्तार है। अच्छा। हाँ, अलबत्ता मीडिया का शोर शराबा देखते हुए हमने ये खुद इखलाकी तौर पर फैसला किया है कि हम अपनी तनख्वाह में 800 रुपए की कमी कर लेते हैं। और शायद 1000 रुपया तो पूरा कर लो। भाई 200 रुपया तो मैंने गिटकू का देना है। ਉਹ ਛੱਡੋ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 800 ਵੀ ਨਾ ਘਟਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। 800 ਦਾ ਕੇਕ ਮੰਗਾ ਲਓ। देखे जुल्फी साहब, सालगिरह को तो कितने दिन गुजर चुके हैं। हाल बत्ता अगर आप सालगिरह वाले दिन आते तो मैं आपको केक भी खिलाता और सर पे पहनने के लिए वो लंबी टोपी भी देता। और वो लंबी टोपी आपको तो सूट भी बहुत कर ली। आपने फौरी तौर पे दानिश्वर से लच्छो बांदरी बन जाना। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पे जी इतनी तेजी से वो आप दीदा हो जाते थे। ओ हो। दुनिया नात गोई के अजीम शायर हजरत हफीज ताइब रहमतुल्लाह अलैह की बरसी थी। हा। मैं हर साल उनको याद करता हूँ और सिर्फ इसलिए करता हूँ कि ऐसा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से लबरेज शख्स मैंने नहीं अपनी जिंदगी में देखा। क्या बात है! नात तो वो कमाल ही लिखते थे। हाँ जी। वैसे आम लाइफ में ना जी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पे जी
इतनी तेजी से वो आप दीदा हो जाते थे। ओ हो। मैं उनका चेहरा याद करता हूँ ना जी आज भी, तो बखुदा मुझे ऐसे रश्क आता है कि ऐसा भी हो सकता है कोई इंसान। हमने वो बहुत गुजरे हैं, सरकार सल्लम से सारी कायनात ही इश्क करती है और बड़े बड़े आशिक हुए हैं सरकार के, कमाल किस्म के लोग। मगर मैंने अपनी जिंदगी में खुद अपनी आंखों से जो देखा है ना जी, जी उसमें सफ़े अव्वल पे हफीज ताइब साहब, वाह 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 वाह। अल्लाह पाक उन पर अपनी बेपाएं रहमत नाजल फरमाए। आमीन। बहुत ही प्यारे और बड़े ही मुअद्दबाना अंदाज में नात लिखते थे और इंसान भी इंतहाई प्यारे, ओहो इंतहाई आजिज इंसान। उनको देखकर और मिलकर यूं महसूस होता था कि यार इन्होंने इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ कागज पर ही नहीं उतारा बल्कि अपने दिल में, अपनी रूह में उतारा हुआ। सुभान अल्लाह, वाह 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 सुभान। देखो ना जरा क्या फरमाते हैं, कदमों में शहनशाह दो आलम के पड़ा हूँ, मैं जर्राए नाचीज हूँ या बख्त रसा हूँ। सुभान अल्लाह। अब कौन सी नेमत की तलब हक से करूं मैं, दहलीज पे सुल्तान मदीना के खड़ा हूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाय हाय हाय। इस पेकरे नूरी को तसव्वुर में बसा कर मैं रोज़ाए अतहर की तरफ देख रहा हूं। दामन मेरा धुलवाया गया अरफा में पहले, फिर दरगाह सरकार में बुलवाया गया हूँ। ऐ काश जरा देर यही वक्त ठहर जाए, मैं पेश रसूल अरबी नात सरा हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हफीज ताइब साहब की अहम खूबी ये है कि उनके नजदीक नात कहना महज सवाब नहीं, बल्कि उन्होंने सीरत तैयबा के मुताले से जो कुछ अखज किया जी और महसूस किया वही लिखा। क्या बात है। एहसान दानिश साहब ने हफीज ताइब साहब के मुतल्लिक कहा कि उनके कलाम में उनका इश्क व अकीदा झलकता है। वो दिल से नात कहते हैं और कलम से अदा करते हैं। वाह वाह वाह। मैं कहता हूँ जी, लोग उन पर रश्क करते हैं और दुआएं देते हैं। अहमद नदीम कासमी साहब जो खुद बहुत बड़े शायर हुए, उनका कहना था कि नात गोई में हफीज ताइब की आवाज सबसे मुनफरिद, नहायत भरपूर और इंतहाई शेरी आवाज है। उनकी नात में इश्क व अकीदत की वारफ्तगी पर सलीका मंदी का पहरा है। क्या बात। हफीज ताइब की नात को पढ़कर कुछ यूं महसूस होता है कि वो एक ऐसा इंसान है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू खड़ा है। उनकी निगाहें झुकी हुई हैं और उनकी आवाज एहतराम की वजह से धीमी है, मगर ना ऐसी के सुनाई ही ना दे और ना ऐसी ऊंची के बेअदब का गुमान गुजरे। शौक है कि उमंड आता है और अदब है कि सिमटा जा रहा है। हजरत हफीज ताइब रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही नात से खुसूसी लगाव रखते थे। क्या बात। उनके वालिद मस्जिद में इमाम के फराइज सरंजाम देते थे और कभी कभार जुम्मा की नमाज से पहले हफीज ताइब साहब को नात सुनाने की भी इजाजत देते थे। अच्छा। बस वही उनको शौक ऐसा पैदा हुआ। अगर कभी वक्त की कमी की वजह से उन्हें नात पढ़ने का मौका ना मिलता था, तो हफीज ताइब साहब की वालदा अपने शोहर से पूछती थी कि क्या आपने आज हफीज को नात नहीं पढ़ने दी? तो वालिद मुस्कुरा कर पूछते थे कि क्या उसने तुमसे गिला किया है? तो वालदा जवाब देती थी कि उसने तो गिला नहीं किया, लेकिन जिस रोज वो नात पढ़कर आता है उस रोज उसके चेहरे का रंग ही कुछ और होता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। उन्होंने शायरी का आगाज तो गजल से किया था जी, मगर फिर जब गुलशने नात में दाखिल हुए तो फिर यहीं के होके रह गए। फिर सारी जिंदगी सिर्फ नात लिखी। एक वाकया मैंने पहले भी सुनाया था कि मैं और मोहम्मद कवि खान साहब मरहूम, अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नतुल फिरदौस में बड़ा आला मुकाम अता फरमाए, हम लोग ना जी पीटीवी की बिल्डिंग में दाखिल हुए जी। तो सामने से हफीज ताइब साहब आ रहे थे। अच्छा। तो हम लोग तेज हो गए
मैंने कहा कि खान साहब हफीज ताहिब साहब, हम तेज तेज चल के उनसे मिले जी। तो कभी खान साहब ने ना जी ऐसे ही बात करते हुए कहा कि ताहिब साहब इश्क कैसा चल रहा है। एकदम बाखुदा एकदम ऐसे उन्होंने चेहरा उठाया और उनकी आंखों से इतने इतने मोटे आंसू गिरने शुरू हो। होए 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 होए। अपनी ऐसी ही कैफियत को उन्होंने नात में भी बयान किया हुआ है। शौको नियाजो इज्ज के सांचे में ढल के आ, ये कूचाए हबीब है पलकों से चल के आ। वाह। सोजे तपश सुखन में अगर चाहता है तू, इश्क नबी की आग से ताइब पिघल के आ। मुझे याद है उनकी बॉडी लैंग्वेज ही ना ऐसी अजीब सी सिमटे होते थे हर वक्त, ऐसे जैसे किसी को उन्होंने गोद में पकड़ा हुआ है और छोड़ना नहीं चाह रहे, अजीब ऐसे हुए होते थे हर वक्त। कमाल आजिज इंसान, कमाल आजिज इंसान। बल्कि उनका सारा खानदान ही, उनके बड़े ही प्यारे भाई हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, अब्दुल मजीद मनहाज साहब। जी जी। मैं उनको भी मिलता हूं तो मैं कहता हूं यार इनके ब्लड में ही शायद ये आजिज़ी है, इनके ब्लड में ही शायद इस तरह की एक चीज है ऐसी कि कोई भी देखता है तो बंदा कहता है कि यार कितना मिटा हुआ इंसान है। सही बात। कमाल। और मजीद मिन्हाज साहब अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, वो अपने भाई के इतने बड़े आशिक हैं, इतने बड़े आशिक हैं कि कमाल। उनको देख के ना जी और उनसे हफीज ताहिब साहब की बातें सुन के जी जी बाखुदा बड़ा रश्क आता है। वाह जी वाह। वाह वाह वाह। अल्लाह ताला ऐसे इंसानों को अजर अजीम अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में बड़ा आला मुकाम अता फरमाए और हजरत हफीज ताइब रहमतुल्लाह अलैह को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत नसीब फरमाए, क्योंकि वो बड़े प्यारे आशिक थे सरकार के। अच्छा, एक और जो आज बात करनी है वो तो इंतहाई दुखी बात है जी। जहाज गिर गया है इंडिया में, मुसाफिर जहाज जी अहमदाबाद में। होए 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 होए। कहीं भी किसी जगह भी दुनिया में इस तरह इंसानों का नुकसान होता है तो बड़ा दिल दुखता है। अहमदाबाद में वो मेरा ख्याल है को 242-43 मुसाफिर जो हैं वो हलाक हो गए। बिल्कुल। और दुख की बात ये है कि वो जहाज डॉक्टर्स के हॉस्टल पे गिर गया है। हाय हाय। हॉस्टल के अंदर भी कई डॉक्टर्स भी हलाक हो गए। होए होए होए। इस तरह के हादसे कहीं भी होते हैं तो ऐसे गमगीन हो जाती है तबीयत के, दिल को हाथ पड़ता सर। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। बिल्कुल। अब घर से जब लोग जाते हैं हवाई सफर के लिए तो वो तो खैर खैरियत से मंजिल तक पहुंचने और फिर वापस घर आने के लिए जाते हैं। और ये जहाज अहमदाबाद से टेक ऑफ किया था और ये जा रहा था लंदन गैटविक एयरपोर्ट के, जिसमें बरतानवी शहरी भी तकरीबन 53 के करीब वो मौजूद थे, एक कैनेडियन शहरी भी मौजूद था। और सारे हलाक हो गए। एक शख्स ऐसा है जो 11A नंबर सीट पर मौजूद था मुसाफिर, वो शायद जख्मी हालत में। हाय हाय हाय। अच्छा, इस तरह के हादसे में जो बंदा बच जाता है ना जी जी जी, उसका भी अजीब एक्सपीरियंस होता है। जैसे ये हमारे यहाँ कराची जहाज गिरा था और वो जफर मसूद साहब जी सर, जो माशाल्लाह पंजाब बैंक के प्रेसिडेंट हैं और हमारे बड़े ही अजीम अदाकार मुनव्वर सईद साहब के बेटे हैं। वो जफर मसूद साहब ने तो किताब लिखी है इसमें, और उनकी आप कभी भी स्पीच सुने इस हवाले से तो आपको ये महसूस होगा कि अल्लाह ताला ने उस हादसे के बाद इनके अंदर एक नया इंसान पैदा करे। वाह वाह वाह। उनका हिम्मत, उनका हौसला और उनका दूसरों को इस हवाले से अवेयरनेस देना वो अजीब है, अजीब है। क्या बात है। बल्कि अब तो उनकी दूसरी किताब भी आई है और मैं उनको इसलिए बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि इस तरह के हादसे के बाद आप अपना एक्सपीरियंस लाजमन दूसरों से शेयर करें। हाँ जी। बहुत बड़ी खुशी के हवाले से भी और बहुत बड़े हादसे के हवाले से भी, सही, जो आपका आंखों देखा है, हाँ जी, जिसमें से आप खुद गुजरे हैं, बिल्कुल सही। आप अगर उसको दूसरों के साथ शेयर करें तो बहुत कुछ समझने में और बहुत कुछ जानने में मदद मिलती है। जिंदगी बदल जाती है सर इंसान की। मैं कहता हूँ जी कि झट गल दे। मैं तो ये सोचता ही हूँ तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ। आज भी मैं अगर कभी जफर मसूद साहब से मिलता हूँ तो मैं उनको देख के कहता हूँ कि यार
ये वो इंसान है जो बच गए इतने बड़े हादसे से, और कैसे दलेर आदमी, कैसे दलेर। मुझे याद है जब ये हादसा हुआ तो कुछ देर बाद मैंने सोचा कि मैं लाहौर पूछूं कहाँ हैं, अगर लाहौर आ गए हुए हैं, क्योंकि कराची थे, कराची, तो मैं जाके उनकी जरा खबर लूं। तो मैं ना जी उनके ऑफिस चला गया, फोन पे मैंने उनके सेक्रेटरी से पूछा तो उन्होंने कहा जी ऑफिस आ रहे हैं। तो मैं चला गया, मैं जाके पहले बैठ गया। कुछ देर बाद वो ऑफिस आए हैं, टांग सारी प्लस्तर चढ़ा हुआ, और एक तरफ उन्होंने वो बैसाखी पकड़ी हुई, और वो दफ्तर आए हुए हैं। इस हालत में दफ्तर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ओ भाई ये वाकई कमाल हौसले का शख्स है। क्या बात है, क्या बात। अल्लाह ताला जी सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और फ़ज़ाई सफ़र सभी करते हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी मंजिल तक खैरियत से पहुंचाए। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।